First of all, I would like to extend my thanks to Team Mantra, who has given me this opportunity to share my thoughts on a very important topic, that is provisions of penalty under the Income Tax Act. Friends, we all know that under Income Tax Act, so many obligations have been casted on taxpayers for voluntary compliances. For example, payment of advance tax, payment of self-assessment tax, payment of tax which has been mentioned under notice under section 156 after the search assessment, then deduction of TDS, deduction of a collection of TCS, filing of TCS return. So all these obligations have been casted on SECs for voluntary compliances. To ensure the voluntary compliances, under income tax, 4 measures have been adopted. Charging interest if the SEC does not pay advance tax in time or does not pay self-assessment tax in time, then they charge the interest. Then charging of fees if you file late return, SEC files late returns, or he files TDS or TCS return late, then fees will be charged under section 234 E and F. Then imposing of penalty. If SEC contravenes any of the provisions of the Income Tax Act, then AO may impose the penalty subject to certain conditions. Then launching of prosecutions also. As regards fees is concerned, I remember that in Bombay High Court, under section 234E, it was constitutional validity of 234E was challenged. The SEC gives his plea that in lieu of fees, SEC is not getting anything from Income Tax Department. Whereas in fees, in general, if we define the fees, then it is a fees for any services. So it is unconstitutional. Then department has given his plea that when SEC deductor does not submit their TDS and TCS return in time, then what happens? The deductee who are filing their income tax return in time, so department has to process their returns and creating unnecessary demands in their account. And when the deductor files the returns, TDS returns or TCS returns, then it is reflecting under their 260 AS and they again revise their returns. So there is extra cost involved here. So for extra cost, they are collecting fees from SECs. After hearing of both the parties, the Bombay High Court has approved the constitutional validity of section 234E, but it was still yet to be tested from the apex court, that is Supreme Court. Now again, I am seeing that in Madras High Court, one writ again filed just challenging the constitutional validity of section 234F. Let us see what is the decision of Madras High Court, whether they follow the decision of Bombay High Court or they will give a different order. Time will tell. As regards penalties, friends, we all know that from the assessment year 17-18, there is a sea change in the provisions, penalty provisions, particularly in connection with concealment of income. That was section 271(1)(c). Actually, what happens in 2015, in a case SSA McDowell's, one SSC has challenged the notice issued by the Income Tax Department under section 271(c) by way of writ before Karnataka High Court.
giving their plea that this notice contains both the limbs of 271C. We know, friends, 271C is having two limbs, concealment of income, and then second limb is filing and submitting of inaccurate particulars of income. So SSC has taken a plea that assessing officer was not sure at the time of initiating the penalty under which limb he wants to charge the SSC. So this is bad in law. After hearing the case, the Karnataka High Court has given benefit to the SSC and that notice was declared bad in law. Department has challenged that case before Supreme Court and Supreme Court dismissed the SLP filed by the department. After that case, almost all ITAT of India and different high courts also followed the judgment of Karnataka High Court. So department was losing the cases of penalties under section 271C on technical grounds. Then department thinks that say goodbye to say 271C. So from the assessment year 17-18, they introduced this section 270 capital A and changed the terminology also. In place of concealment of income and furnishing of inaccurate particulars of income, they change it under-reporting of income. Under-reporting of income is defined under subsection 2 of section 270A. Then under-reporting in consequence of misreporting has been defined under subsection 9 of section 270A, and there are some exclusions also. It means even assessing officer makes some additions or disallowances something, then in spite of the same, if it comes under subsection 6, then he cannot impose the penalty. All these things we will discuss in our detailed discussions. Here, one thing also I want to share, that this provision was came in Finance Bill 2016, but it was applicable from the assessment year 17-18 because there was a court case in Supreme Court, that is Birjmohan versus CIT, reported in 120 ITR 1, in which the Supreme Court has held that at the time of filing of return, the provisions will apply. So 17-18, from the 17-18, the section 270A is applicable. From these words, I conclude my opening remarks and request Alok to please start the detailed discussion. Thank you, sir. And let us start. So the first thing which we want to understand is what are the major procedures of penalty proceeding? If you can throw some light on that. From 12th January 2021, now penalty proceeding is also faceless. So there is a national faceless penalty center, regional faceless penalty center, then penalty unit and penalty review unit. So when assessing officer computes or assess the income of SSC under section 143(3) or 147, then he will recommend for initiation of penalty to the National Faceless Appeal Center. National Faceless Appeal Center, after receiving this recommendation, we select a penalty unit because now it has a dynamic jurisdiction. It is not a fixed jurisdiction. So with the help of the software, the National Faceless Penalty Center will select a penalty unit and sends that file to that penalty unit. Penalty unit either agree with the recommendations of the AO after examination of all the records available with him, or disagree for it. If he agree for initiation of penalty or recommendation with the AO, then he will draft a show cause notice for the SSC and send it to National Faceless Appeal Center, National Faceless Penalty Center,
and National Faceless Penalty Center will issue a notice to the SSC. Then SSC will submit his reply to the National Faceless Penalty Center, and National Faceless Penalty Center will send it to the appeal penalty unit, and after that, and if they don't disagree, suppose, then penalty unit will pass a speaking order giving the reasons for why he is disagreeing for these recommendations, and then it will be dropped. This penalty will be dropped. But after receiving the response from, in case number 1, receiving the response from SSC through National Faceless Penalty Center, the penalty unit again examine the reply of the SSC and decides whether this is a case for dropping the penalty or imposing the penalty. If it was the imposing of penalty, he passed the order and send it to Faceless Penalty Center. If Faceless Penalty Center thinks that it is it is a final order, they will serve to the SSC, and if they think that it requires any review, then they will send it to the review unit, and after getting the feedback from review unit, then it will be finalized. So this is the procedure for now penalty after 12th January 2020. Here one thing also I want to mention, that as per section 273B, no penalty can be imposed if the SSC proves that there is a reasonable cause. But 270A is not included in this section. It means in 270B, this section is not applicable. Now, in a question arises, what is a reasonable cause? Then Supreme Court decides in a case, that is Azadi Bachao Andolan, reported in 132 Taxman 373, in which the Supreme Court says that a man of ordinary prudence and average intelligence, working in a normal circumstances without negligence, if prevented by certain circumstances to comply, that is a reasonable cause. It means अगर कोई आदमी जो साधारण इंटेलिजेंसी रखता है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी है, वो कंप्लायंस करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए जो कि उसको प्रिवेंट कर दिए कि वो ही कैन नॉट कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. फॉर एग्जांपल, सपोज 143(2) की नोटिस आ गई किसी को, और वो नोटिस आने के बाद में वो कंप्लायंस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस दिन अगर किसी उसके घर में कोई मौत हो गई, वो कोई एक्सीडेंट हो गया उसका, या वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो ऐसे कारण, या कोई अगर बिजनेस हाउस है उसके यहाँ कोई लॉकआउट हो गया, कोई स्ट्राइक हो गई, तो अगर ये प्रूव कर दे 273B में SSC कि शायद ड्यू टू दिस रीजन मैंने ये कंप्लायंस नहीं किया, तो वो वहां पर पेनल्टी इंपोज नहीं. थैंक यू सर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द रिसेंट केस लॉज ऑन पेनल्टी प्रोसीडिंग. और कल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आया है कोलकाता हाई कोर्ट का, वो भी मैं बताऊंगा, बट उसके पहले सर कुछ रिसेंट केस लॉज के बारे में डिस्कस कर लिया जाए. जैसे कि एक केस लॉ है PCIT वर्सेस गोल्डन पीच होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में बताइए सर. हाँ, गोल्डन पीच I have already discussed this issue in my opening remarks. कि 271C, it actually relates with 271C case. Yes. 271C is having two limbs, concealment of income and furnishing of inaccurate particulars. तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट का केस मैंने आपको डिस्कस किया, बाद में ये 2021 में 124 रिपोर्टेड इन 124 taxman.com 299 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फिर अपना डिसीजन दे दिया कि वो आपको दो लिम में से एक लिम ही बताना पड़ेगा नोटिस में. यानी एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग नोटिस, असेसिंग ऑफिसर मस्ट बी श्योर इन व्हिच लिम ही वांट टू चार्ज द एफ. ओके सर. नेक्स्ट सर, हम ये PCIT वर्सेस सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डिस्कस कर लें. देखिए, अभी हमने डिस्कस किया 273B में कि अगर रीजनेबल कॉज अगर बताया जाएगा तो SSC असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे.
सहारा इंडिया केस, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, रिपोर्टेड इन 119taxman.com 285। इसमें एक गांव में एक आदमी जो इलिटरेट था, जो पढ़ा लिखा नहीं था और उसको कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था, उस गांव में कोई बैंकिंग फैसिलिटी भी नहीं थी, उसने 20,000 से ज्यादा पैसा सहारा इंडिया में जमा किया और असेसिंग ऑफिसर ने 269 का चूंकि वायलेशन हो गया, 269 हम लोग जानते हैं कि 20,000 यानी मोर देन 20,000 रुपीज एसएससी कैन नॉट एक्सेप्ट। इफ ही एक्सेप्ट्स देन इट कंट्रावेंस दिस सेक्शन 269 और 271D में टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट एक्सेप्टेड विल बी द पेनल्टी। तो सहारा इंडिया ने ये प्ली लिया कि शायद ये जो व्यक्ति है जिसने हमको डिपॉजिट दिया, उसका ना कोई बैंक अकाउंट था, ना उसके गांव में बैंकिंग फैसिलिटी थी, ना वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो कानून के बारे में जानता नहीं है, तो इट कम्स अंडर द रीजनेबल कॉज। सो ये पेनल्टी हमको नहीं लगनी चाहिए और सहारा इंडिया ने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पेनल्टी छोड़ दी थी, फेवर्स दी एसएससी। ओके सर, आई गॉट दैट। और सर ये इंडियन शुगर एग्जिम कॉर्पोरेशन का रूलिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग था। इट टॉक्स अबाउट द कैलकुलेशन टाइम बार लिमिटेशन, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए 275 में टाइम बारिंग का प्रोविजंस दिए गए हैं और ये केस था ITA-TT से संबंध में। एक्चुअली 275 ये कहते हैं कि एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द मंथ इन विच द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द PCIT, ये टाइम बार्ड कर जाएगा। यानी सपोज आज 10 जुलाई है, 10 जुलाई को अगर PCIT के पास कोई ऑर्डर आता है तो एंड ऑफ द जुलाई, यानी आप एंड ऑफ जुलाई के बाद यानी 31 दिसंबर तक, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने हो गए 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक उनको पेनल्टी इम्पोज कर देना है। अगर उन्होंने इम्पोज नहीं किया तो ये आपको टाइम बार्ड कर जाएगा। इस केस में क्या हुआ है कि एसएससी वो जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर आया, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर आने के बाद में उन्होंने एक कुछ ग्राउंड पर स्पेशल पिटीशन फाइल कर दी, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल कर दी, तब उन्होंने एसेसिंग ऑफिसर ने वो पेनल्टी लगाई नहीं, क्योंकि वो एसेसिंग ऑफिसर ने ये ग्राउंड लिया कि चूंकि अभी वो प्रोसीडिंग चली रही है, क्योंकि उसमें स्पेशल पिटीशन फाइल हो गई है, तो उन्होंने पेनल्टी नहीं लगाई। एसएससी ने बाद में इसको ये प्ली लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि साहब नहीं, जो आपको ऑर्डर आ गया ITA-TT से, उसके 6 महीने के अंदर ही आपको इम्पोज करना था, चूंकि आपने इम्पोज नहीं किया तो ये टाइम बार्ड कर गया। हेलो, आर यू हियरिंग मी? Yeah, I'm there. So what I'm saying, next 2 case laws I will jump because those are very related. I will directly go to the case law which is PCIT versus Ashok Kumar Parikh, wherein it talks about the representation during assessment proceeding. Sir, इस case law के बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि ये थोड़ा relevant लग रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस आया था, इसमें ये बोला गया कि ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी हैड मेड फुल रिप्रेजेंटेशन व्हाई अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ रिसिप्ट वाज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एंड इन सच ए केस merely because assessing officer did not accept such a stand of SSC would not typically permit revenue to levy penalty। यानी असेसिंग ऑफिसर के सामने एसएससी ने अपने ग्राउंड्स दिए कि ये रिसीट क्यों नहीं टैक्सेबल होगी, और असेसिंग अफसर ने उसको नहीं वहां माना, वहां एडिशन कर दिया। और बाद में पेनल्टी जब लगाने की बात हुई, चूंकि हम जानते हैं कि पेनल्टी प्रोसीडिंग इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग होती है, सिर्फ एडिशन से ही पेनल्टी नहीं लग जाएगी, तो वहां पर उन्होंने ये प्ली लिया कि साहब ये हमारा एग्जाम रिसीट था और इस पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चूंकि ओरिजिनल ऑर्डर में सिर्फ उन्होंने आपके प्ली को नहीं माना, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसी बेसिस पर पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर में सिर्फ उसी ग्राउंड पर पेनल्टी लगा दी थी। जी, गॉट इट।
सर नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड आपने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से डिफॉल्ट्स में असेसिंग ऑफिसर कैन वेव ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इफ रीजनेबल कॉज फॉर फेलियर ऑफ डिफॉल्ट इज प्रूव्ड। तो ये आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि इस बारे में आपको और कुछ इलिस्ट्रेट करना इन टर्म्स ऑफ रीजनेबल कॉज फॉर फेलियर और वी शुड मूव अहेड। नहीं, रीजनेबल कॉज में मैं एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को डिस्कस करना चाहूंगा। एक केस हुआ आजादी बचाओ आंदोलन, रिपोर्टेड इन 132 टैक्समैन 373। इसमें ये बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये हाँ, इसी में इन्होंने बोला कि ए कॉज विच प्रिवेंट्स ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एंड एवरेज इंटेलिजेंस एक्टिंग अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदाउट नेग्लिजेंस। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो उस केस में तो नहीं लगा। एक केस और है, मोतीलाल पद्मापत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रिपोर्टेड इन 118 ITR 326। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एवरीबडी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो लॉ, particularly in a country where a large section of the population is illiterate, but the facts might indicate whether a presumption in favor of the SSC can be made। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि हमारे देश में चूंकि बहुत से लोग अशिक्षित हैं, तो उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो सारे कानून के प्रोविजंस जाने। तो ये एक रीजनेबल कॉज हो सकता है कि वो कानून जानता ही नहीं है, लेकिन ये उस आदमी पर लागू होगा जो एकदम गांव देहात में रह रहा है, कोई भी वहां पर कोई बैंकिंग, वहां पर कोई भी वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको दुनिया पूरे कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तब ये लागू होगा। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये जो कि कानून को नहीं जानना कैन नॉट बी एक्सक्यूज, क्योंकि बाद में बहुत से कोर्ट्स ने बोल दिया कि कानून को नहीं जानना कैन नॉट बी एक्सक्यूज फॉर इम्पोजिंग द पेनल्टी। ओके सर, थैंक्स फॉर गाइडिंग ऑन दैट। अब मैं नेक्स्ट क्वेरी पे जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेरी है कि क्या टाइम बार लिमिटेशन होता है फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी? व्हाट इज देयर अ टाइम बार लिमिटेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी? आपने थोड़ा सा ये पहले भी बताया है, कि अगर आप डिटेल में बता पाओ तो। देखिए 275 में इसका प्रोविजंस, इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 275। मैं इसको 3 भाग में बांट कर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, वो केस जहां पर अपील या रिवीजन नहीं किया गया, यानी असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, पेनल्टी का ऑर्डर पास कर, ये असेसमेंट का ऑर्डर पास कर दिया। एक्चुअली टाइम बारिंग का मतलब ये हुआ कि पेनल्टी कब लगेगी, कब टाइम बार कर जाएगी। तो असेसिंग ऑफिसर सबसे पहले असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं, 143 में किया या 147 में किया, और एक इनिशिएट कर दिया पेनल्टी। अब अगर उस केस में एसएससी अपील नहीं करते हैं या रिवीजन में नहीं जाते हैं 264 में सीआईटी के पास, तो उस केस में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 6 months from the end of the month in which the penalty was initiated, which period expires later। यानी सपोज 10 जुलाई को आज पेनल्टी इनिशिएट हुई, तो अब ये पेनल्टी, और इसमें हमारा सीआईटी अपील यानी अपील में हम नहीं गए, न तो अपील में गए और न हम रिवीजन में गए, तो हमारी ये पेनल्टी को उनको लगानी है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च के पहले ये पेनल्टी इम्पोज या ड्रॉप जो भी उनको करना है, ये प्रोसीडिंग एंड कर देंगे। अगर वो प्रोसीडिंग एंड नहीं करते हैं तो 31 मार्च को ये टाइम बार्ड कर जाएगी। लेकिन सिमिलरली अगर 31 दिसंबर में अगर पेनल्टी इनिशिएट की असेसिंग ऑफिसर ने और उस केस में भी अपील नहीं गए, तो वो आपको जो है 30 जून तक उनको पेनल्टी प्रोसीडिंग को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 30 जून के बाद में उनको वो टाइम बार्ड कर जाएगा। दूसरा केस है कि सीआईटी अपील के यहाँ इट इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। सपोज एसएससी फाइल से अपील बिफोर सीआईटी अपील। उस केस में 1 जून 2003 से उन्होंने चेंज किया, पहले तो वही था, लेकिन 1 जून 2003 से जो अभी प्रोविजंस आ गए हैं वो है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में उनको ऑर्डर मिलेगा उससे 12 months, यानी 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द प्रिंसिपल कमिश्नर रिसीव्स द ऑर्डर फ्रॉम सीआईटी अपील।
यानी सीआईटी अपील से जब ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर के यहाँ जिस साल में मिलेगा वो उससे 12 महीना के अंदर, यानी अगर आज 10 जुलाई को कोई ऑर्डर रिसीव करते हैं प्रिंसिपल सीआईटी अपील से, तो अगले साल यानी 31/3/2023 तक वो ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी 31/3/2022 तो यही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, तो उसके 12 मंथ्स के अंदर। लेकिन आईटीएटी के लिए नियम अलग है। आईटीएटी के लिए नियम प्रोविजो 1 ही लागू होगा। आईटीएटी में जब ये ऑर्डर आईटीएटी से मिलेगा तो जिस महीने में मिलेगा उससे एंड ऑफ द 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर रिसीव्स बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर। यानी अगर आज 10 जुलाई को अगर ये ऑर्डर मिलता है प्रिंसिपल कमिश्नर से को आईटीएटी से, तो आज इस महीने यानी 31 जुलाई से 6 महीना, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको 31 जनवरी तक आपको ये ऑर्डर पास करने होंगे पेनल्टी के, नहीं तो वो टाइम बाट कर देंगे। क्लियर? Okay, sir. Clear. Next is what is the penal consequences of not paying self-assessment tax? ये एक छोटी सी क्वेरी है, आई थिंक आपने पहले भी कवर किया है, बट अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में कवर करो तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट नहीं करने में क्या पेनल्टी लगती है? देखिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते किसको, पहले ये समझ लीजिए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब एसएससी अपनी रिटर्न भरने जा रहा है तो उसके पहले एक कंप्यूटेशन बनाएगा, और वो कंप्यूटेशन से जो उसकी टैक्स आएगा, जो टैक्सेबल इनकम आएगी, उसके ऊपर वो टैक्स कंप्यूट करेगा। उस टैक्स में से वो अपना एडवांस टैक्स घटाएगा और अपना टीडीएस अमाउंट घटाएगा। अब जो ये और टीसीएस भी घटाएगा। ये घटाने के बाद अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आती है तो एक एज पर सेक्शन 140A उनको बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो टैक्स जमा कर देना है। अगर वो टैक्स अगर वो जमा नहीं करते हैं तो 140A3 में वो एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएंगे, यानी ही विल बी डिक्लेयर्ड एसएससी इन डिफॉल्ट, ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 140A विद इन ब्रैकेट 3। और जैसे ही वो एसएससी इन डिफॉल्ट हो गए तो अब एसेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 221 विद इन 1 में उनको पेनल्टी लगाने का उनको पावर मिल गया, यानी वहां 221 में वो पेनल्टी लग सकती है उनके ऊपर। पेनल्टी का क्वांटम क्या होगा ये डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर होगा, लेकिन टू द अमाउंट ऑफ जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लीजिए 50,000 रुपया देना है तो 50,000 या उससे कम असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ओके सर, थैंक यू। What is the penal provision for not filing the income tax return within the due date? ये 139 of the act within the due date बोला जाता है बार बार। ड्यू डेट हर साल बढ़ती रहती है, कभी कोविड के कारण, कभी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है, देयर आर मेनी रीजंस। पिछले 5-7 साल में तो मैंने नहीं देखा कि कभी ड्यू डेट नहीं बढ़ी हो। तो उसका penal provision क्या है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट अंडर 139? देखिए, सेक्शन 139 के अनुसार एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है। वो 31 जुलाई है जिनका ऑडिट केस नहीं है, ऑडिट केस के लिए 31 अक्टूबर है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वालों के लिए 30 नवंबर है, या एक्सटेंडेड पीरियड जैसे कि अभी कोरोना पीरियड में इन्होंने एक्सटेंड किया डेट, उस डेट में उनको रिटर्न भरना है। अब अगर रिटर्न नहीं भरेंगे तो अब उनको पेनल्टी नहीं लगेगी, उनको अब फीस लगेगी। 18-19 से ये कानून चेंज हो गया। पहले 271F था, उसमें पेनल्टी लगती थी, लेकिन वो अपीलेबल ऑर्डर था, उसमें अपील कर सकते थे, उसमें हियरिंग अपॉर्चुनिटी भी देनी थी एसएससी को, लेकिन वो उन्होंने अब डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको हटा दिया 271F को। उसके बदले में इन्होंने 234F इसमें इन्होंने फीस लगा दिया। फीस आज के दिन 5,000 है, 5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम वाले अगर रिटर्न भरेंगे तो उनको 5,000 रुपया, और जो अगर 5 लाख और 5 लाख से कम वालों को 1,000 रुपीज फीस लगेगा। फीस में आप अपील नहीं कर सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी देने की भी जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर 156 में डिमांड नोटिस इशू होता है, चाहे असेसमेंट के बाद या कभी भी, तो व्हाट इज द पेनल प्रोविजन फॉर फेलियर टू पे टैक्स अंडर डिमांड फॉर 156? इसमें थोड़ा बताइए। देखिए, 156 की नोटिस कब इश्यू होती है? चाहे तो एसएससी ने रिटर्न भर दी, उनकी प्रोसेसिंग हो गई,
सीपीसी ने उनकी प्रोसेसिंग कर करके उनका कुछ इंटरेस्ट या कुछ टैक्स बकाया था और वो उसकी डिमांड दे दी 156 में, या फिर 143(3) में स्क्रूटनी हुआ या 147 में स्क्रूटनी हुआ, तो उस केस में अगर कोई डिमांड आती है तो वो उस डिमांड के लिए 156 की नोटिस इशू करते हैं। नॉर्मली 156 की नोटिस में 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि 30 डेज के अंदर में एसएससी को टैक्स जमा करना है, लेकिन समय कम भी कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर कुछ सर्कमस्टांसेस में। अब अगर एसएससी उस समय में, जो समय उस नोटिस में दिया हुआ है, स्टिपुलेटेड टाइम में टैक्स नहीं भरता है, फेल्स टू डिपॉजिट टैक्स एज मेंशन इन नोटिस अंडर सेक्शन 148, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट हो गए सेक्शन 220 में, और सेक्शन 220 में जैसे एसएससी इन डिफॉल्ट हो गए तो 221 में इसमें पेनल्टी लगेगी उनको, और 220 में क्वांटम जो है वो भी वही है जो सेल्फ असेसमेंट का है कि टू द एक्सटेंट ऑफ amount mentioned in notice under section 156 or as per discretion of the assessing officer। यानी अगर किसी का 156 के नोटिस में 50,000 का टैक्स जमा करना, 50,000 अगर जमा करना है तो वो 50,000 तक की पेनल्टी लगा सकते हैं असेसिंग ऑफिसर, लेकिन उससे कम भी लगा सकते हैं सीइंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब इसमें लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों से चूंकि डिपार्टमेंट एक सर्कुलर लेके आया कि साहब अगर 20% ऑफ द डिमांड अगर एसएससी जमा करते हैं और एक पिटीशन लेकर जाते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास कि हमारे ये बाकी के जो 80% डिमांड है उसको आप स्टे कर दीजिए टिल द डिस्पोजल ऑफ द फर्स्ट अपील, तो असेसिंग ऑफिसर उसको फर्स्ट अपील में के डिस्पोजल तक उसको स्टे कर रहे हैं। पहले बहुत परेशानी होती थी क्योंकि पहले इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं था और असेसिंग ऑफिसर जनरली स्टे नहीं करते थे डिमांड क्योंकि रेवेन्यू का मामला था। ओके सर, ओके क्लियर। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक सबके दिस इज देयर इन द माइंड्स ऑफ मेनी ऑफ द एसएससी टैक्स पेयर बिजनेस, मोस्टली स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, और वो ये होता है कि मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। पहले तो ये मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होता क्या है और उस पर क्या पेनल प्रोविजन लग सकते हैं बाय डिपार्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, आई थिंक यू शुड एक्सप्लेन दिस। देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि 27(1)(c) के केस में 21(c) के केस में चूंकि एसएससी डिपार्टमेंट बहुत से केस टेक्निकल रीजन के कारण वो डिफीट होना शुरू कर दिए थे, तो वैसे केस में उन्होंने क्या किया कि 271(c) के बदले में असेसमेंट ईयर 17-18 से इन्होंने 270(a) इंट्रोड्यूस किया। इसमें अंडर रिपोर्टिंग का इन्होंने इसका जो टर्मिनोलॉजी भी चेंज की, कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम के बदले में इन्होंने ले आए अंडर रिपोर्टिंग। अब अंडर रिपोर्टिंग विदाउट मिस रिपोर्टिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 270(a) सब सेक्शन 2 में। इन्होंने जो 7 सिचुएशंस है जिस सिचुएशन में अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है, इसमें 4 सिचुएशन नॉर्मल एसएससी के लिए इन्होंने एक्सप्लेन किया, वहां 3 सिचुएशन जो है वो डीम्ड इनकम जो 115 जेबी और 115 जेसी के लिए जो कंपटीशन होता है उसके लिए इन्होंने 7 सर्कमस्टांसेस इस तरह से इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो अब पहला मैं डिस्कस करता हूं कि 7 सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है किस सिचुएशन में अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी। पहला है कि अगर प्रोसेस्ड इनकम अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दी, पहला सिचुएशन है कि एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दी, तो अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दी तो सीपीसी उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, तो सीपीसी से प्रोसेसिंग करके जो प्रोसेस्ड इनकम आया और बाद में उनका केस अगर स्क्रूटनी में आता है 143(3) में करते हैं, तो उस केस में ये जो एसेस इनकम और प्रोसेस इनकम का डिफरेंस जो होगा वही अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी। देखिए, अभी जो मामला जो है, पहले क्या था कि जो भी एडिशंस होते थे एडिशन वाइज इनका डिसअलाउंस होता था, ये पेनल्टी लगती थी, लेकिन अभी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, यानी प्रोसेस इनकम और एसेस इनकम का डिफरेंस अगर नहीं आएगा, कुछ सर्कमस्टांसेस में डिस्कस करूंगा कि आपको डिसअलाउंस होने के बावजूद भी वो अगर डिफरेंस नहीं आया तो वो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी 270(a) में। तो पहला सिचुएशन इन्होंने बताया कि
जब एसएससी ने रिटर्न भरी तो प्रोसेस इनकम और एसेस इनकम का डिफरेंस को हम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानेंगे। सेकेंड सिचुएशन जहां एसएससी ने रिटर्न नहीं भरी या एसएससी ने रिटर्न भरी 148 के कंप्लायंस में उन्होंने रिटर्न भरी, तो उस केस में दो सिचुएशन का इन्होंने वर्णन किया है। एक तो उस केस में जिसमें कि बेसिक एग्जाम्पशन नहीं है, जैसे कंपनी, फर्म्स और लोकल अथॉरिटी, तो इस केस में जो भी इनकम एसेस्ड होगी, क्योंकि वहां तो प्रोसेस इनकम है ही नहीं, तो जो भी एसेस इनकम होगी वो सारी के सारी अंडर रिपोर्टिंग होगी। जबकि पहले जो अर्लियर जो लॉ थे उसमें 148 की रिटर्न में जो असेसमेंट जो रिटर्न भरते थे एसएससी, और बाद में उसका असेसमेंट सपोज 10 लाख रुपए की 148 की रिटर्न भर दी एसएससी ने और असेसमेंट हुआ उनका 20 लाख पर, तो उनको पेनल्टी 10 लाख पे ही लगता था। लेकिन आज जो 270A में जो इन्होंने डिफिनेशन चेंज किया अंडर रिपोर्टिंग का, इसमें अब 20 लाख पर लगेगा टैक्स उनको, क्योंकि 148A 140 ये जो उन्होंने रिटर्न भरते नहीं थे तो उनका कोई डिस्क्लोज रिटर्न इनकम ही नहीं है। जब डिस्क्लोज इनकम नहीं है तो जो भी इनकम एसेस किया असेसिंग ऑफिसर ने वो पूरी की पूरी अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी। थर्ड सिचुएशन है कि रीअसेसमेंट का केस, एसएससी ने रिटर्न भर दी और रिटर्न भरने के बाद में उनका 143.3 में असेसमेंट हो गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली सपोज उनका केस फिर से 147 में 148 में नोटिस आ जाती है और 147 में अगर रिटर्न भरते हैं, एसएससी अगर रिटर्न भरते हैं, तो वो जो 143.3 में जो इनकम थी एसेस इनकम थी और 147 में जो नई इनकम आई एसेस इनकम आई, दोनों को डिफरेंस को अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी। यानी 147 जो अभी और जस्ट इसके पहले जो भी हो सकता है कि उस एसएससी के केस में 143 भी हो गया हो और एक बार 147 भी हो गया हो और फिर से 147 हो रहा हो, यानी 147 जो रिसेंट जो 147 का एसेस इनकम है और जस्ट इसके पहले जो भी ऑर्डर हुआ हो, चाहे 143 का हो या 147 का हो, उसमें जो एसेस इनकम है उसके डिफरेंस को अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी। फोर्थ सिचुएशन इन्होंने दिया है उसमें कि अगर लॉस की रिटर्न एसएससी भरते हैं, सपोज कोई एसएससी 50 लाख लॉस की रिटर्न भर देते हैं और 50 लाख लॉस को एसएस जब उनका स्क्रूटनी में आता है केस तो उसको उन्होंने 20 लाख कर दिया लॉस को। कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है, टैक्स पेएबल नहीं है उस केस में, लेकिन तो भी उसमें पेनल्टी लगेगी क्योंकि वो 30 लाख का जो एडिशन किया जिसके कारण उनका लॉस अब 20 लाख हो गया, तो ये 30 लाख अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी और इस पर उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो गई। और अगर वो पॉजिटिव भी कर देते हैं, मान लीजिए 50 लाख की रिटर्न है और 10 लाख पॉजिटिव इनकम पर असेसमेंट हो गया, तो 50 लाख के लॉस की रिटर्न एसएससी ने दी थी, तो यहाँ पर 60 लाख का एडिशन उन्होंने कर दिया, तो 10 लाख की पॉजिटिव इनकम हो गई, तो यहाँ 60 लाख रुपया जो है ये इनका अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगी। और तो ये इस तरह से नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में ये होगा। अब अगर डीम्ड इनकम की बात करें जो कि 115 जेबी कंपनीज के केस में और जेसी जो है फर्म्स के केस में हम लोगों को दो कंपटीशन करना पड़ता है। हम लोग सब जानते हैं कि एक नॉर्मल प्रोविजंस के आधार पर कंपटीशन करेंगे, एक हमको 115 जेबी के आधार पर या जेसी के आधार पर करेंगे, और जिसमें भी टैक्स ज्यादा आएगा वो रिटर्न एसएससी को देनी पड़ेगी। तो अगर एसएससी ने रिटर्न भरी है जेबी के केस में 115 डीम्ड इनकम में भरी है और वो प्रोसेस होकर आ गई, तो सपोज मान लीजिए 50 लाख की डीम्ड इनकम हुई और असेसिंग ऑफिसर ने 70 लाख की डीम्ड इनकम कर दी, तो 20 लाख रुपया वो अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी। सिमिलर अगर किसी ने रिटर्न ही नहीं भरी और असेसिंग ऑफिसर उसको कंप्यूट जब करता है तो वो डीम्ड इनकम का कंप्यूटेशन तो उनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो जो भी डीम्ड इनकम का जो टैक्स आएगा वो सारा का सारा उसके ऊपर वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। सिमिलरली रीअसेसमेंट के केस में भी अगर 143.3 में कोई डीम्ड इनकम का असेसमेंट पहले हो गया है और अभी 147 में अगर डीम्ड इनकम का असेसमेंट हो रहा है, मान लीजिए पहले 20 लाख रुपया डीम्ड इनकम हुई, अभी कोई एडजस्टमेंट कर करके 30 लाख हो गई, तो ये 10 लाख रुपया अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। अब इसमें एक जो अभी जस्ट पहले मैं बता रहा था कि कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं जबकि डिसअलाउंस हुआ, एडिशन हुआ, लेकिन 270A का पेनल्टी नहीं लगेगा। कैसे? तो अब सपोज एसएससी ने रिटर्न भरी 10 लाख की और प्रोसेस इनकम हुई उनके 15 लाख की, मान लीजिए कुछ एडजस्टमेंट कर दिया सीपीसी ने और 15 लाख की इनकम पर टैक्स लगाया, तो अब ये जो 5 लाख का डिफरेंस है इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली।
क्योंकि ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रोसेस इनकम और रिटर्न इनकम के डिफरेंस पर 270A लगेगा, तो ये यहाँ अंडर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है एज पर सेक्शन 270A। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, मान लीजिए किसी का कैरेट फॉरवर्ड लॉस है 50 लाख रुपए का, बिजनेस कैरेट फॉरवर्ड लॉस 50 लाख का हुआ और इस साल उनकी इनकम हुई 10 लाख रुपया की, तो वो 10 लाख रुपया आपने सेट ऑफ कर लिया 50 लाख रुपया जो उनका कैरेट फॉरवर्ड लॉस था, तो अभी उनकी नील रिटर्न जाएगी और 40 लाख रुपए जो है उनका कैरेट फॉरवर्ड लॉस हो जाएगा अगले साल के लिए। अब उनका केस मान लीजिए स्कूटनी में आ गया और असेसिंग ऑफिसर ने 10 लाख का डिसअलाउ किया या एडिशन कर दिया, तो अभी 20 लाख की इनकम हो गई उनकी टैक्सेबल और 50 लाख का उनका कैरेट फॉरवर्ड लॉस है, तो कैरेट फॉरवर्ड लॉस में फिर वो 20 लाख रुपया एडजस्टमेंट कर लिए, 30 लाख को कैरेट फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम यहाँ नील आ गई, एसेस इनकम यहाँ नील आ गई। तो जो डिफरेंस है प्रोसेस इनकम और एसेस इनकम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ एडिशन मेड बाय एओ पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज अंडर सेक्शन 270A। Thank you, sir. That was so much in detail, and thanks for explaining it. We have so many questions that it's just not possible to cover everything under penalties of income tax in one webinar. So I will talk about relevant things now. So, sir, what is the penal consequences of non-complying with notice for seeking certain information or filing return? बहुत बार 142 1 का नोट। आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि वो तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन 270A में दो इंपॉर्टेंट इश्यू छूट रहे हैं, क्योंकि एक तो मिस रिपोर्टिंग कब होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया सेक्शन है 270A, तो इसको हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। तो सर वो आप कवर कर लीजिए, क्योंकि 270A में अभी एक तो मिस रिपोर्टिंग को बहुत, क्योंकि अभी हम अंडर रिपोर्टिंग पर आपको अंडर रिपोर्टिंग विदाउट मिस रिपोर्टिंग पर 50% पेनल्टी लगेगी, 50% ऑफ टैक्स इवेडेड पेनल्टी लगेगी, और अगर अंडर रिपोर्टिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग है तो 200% पेनल्टी होगी। अब किस सर्कमस्टांसेस में मिस रिपोर्टिंग माने जाएंगे, तो सब सेक्शन 9 में 5 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, 5 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जिसमें कि आपको मिस रिपोर्टिंग माने जाएंगे। पहला सर्कमस्टांसेस उन्होंने दिया है कि मिस रिप्रेजेंटेशन और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। अब मिस रिप्रेजेंटेशन टू माय माइंड इज अगेन फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम, जो पहले था 271C में, और सपरेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्स अगेन इट कम्स कंसीलमेंट ऑफ इनकम। तो वही चीज का इन्होंने खाली नाम चेंज कर दिया, बट अगर कोई इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स फाइल किए एसएससी ने या कोई कंसीलमेंट किया, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स माने कंसीलमेंट ऑफ इनकम हुआ, तो उसके ऊपर 200% पेनल्टी लगेगी। अंडर रिपोर्टिंग तो दोनों केस में ही होगी, 50% में भी अंडर रिपोर्टिंग है और 200% में भी अंडर रिपोर्टिंग है, बट अंडर रिपोर्टिंग विदाउट मिस रिपोर्टिंग पर 50% पेनल्टी विल बी इम्पोज, एंड अंडर रिपोर्टिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग 200% पेनल्टी विल बी इम्पोज। सेकेंड इन्होंने दिया फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी एसएससी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहां इसको मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी और इस पर 200% पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहां में एक आपको ध्यान, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन कि सेक्शन 69 आल्सो स्पीक्स अबाउट अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट। वहां भी बोलते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट किया एसएससी ने और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, और उसके लिए पेनल्टी उसमें जो टैक्स भी 60% है, 115 BBE में, 115 BBE में 60% आपका ये है, उस पर ये टैक्स है, और इस पर पेनल्टी भी 10% ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो डबल पेनल्टी थोड़ा लगेगी। तो ये हमको इसका रेलिवेंस नहीं समझ में आया कि फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब कवर्ड हमारा सेक्शन 69 में है पहले से, उसके लिए 60% टैक्स है, जो कि बहुत ज्यादा टैक्स है, और साथ में 10% पेनल्टी भी है। तो यहाँ इसका रेलिवेंस मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर लेजिस्लेचर क्या चाहते हैं, डबल पेनल्टी तो नहीं हो सकती। सेकेंड है क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय द एनी एविडेंस। अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया है और उसका एविडेंस आप नहीं दे पा रहे हैं, यानी विदाउट एनी एविडेंस अगर आप कोई एक्सपेंडिचर को आप बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, तो ये भी मिस रिपोर्टिंग के क्लास में आएंगे और इस पर 200% पेनल्टी लगेगी। फिर फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग ए बियरिंग ऑन द टोटल इनकम, यानी कोई इनकम, जैसे सपोज शेयर्स आउटसाइड बुक्स हो जाए तो ये मिस रिपोर्टिंग के श्रेणी में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको वो रिसीट अगर आप डालते तो आपकी टैक्स बढ़ती, तो आप मिस सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स भी कर रहे हैं तो मिस रिपोर्टिंग आ जा रही है। फिर आपको है फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और एनी ट्रांजेक्शंस डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग 92D हम लोग जानते हैं और 10D के हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो टीपीओ है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है, उसकी यहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर ये रिपोर्टिंग हमने नहीं की है तो ये फिर आपको इसमें भी आपको मिस रिपोर्टिंग का चार्ज लगेगा और 200% इसमें भी आपको टैक्स लगेगा। फिर है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब रिकॉर्डिंग इन द फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये ऑलरेडी 271AA में कवर्ड है। तो अब 271AA में जब कवर्ड है पहले से ही, तो फिर यहाँ पर इसका भी रेलिवेंस मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि वहाँ अप टू द अमाउंट ऑफ, बिकॉज डेट वाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो भी 2021 से ही लागू हुआ है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे 271AA पर, कि अगर फॉल्स एंट्री असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपना असेसमेंट प्रोसीडिंग अगर वो फाउंड करते हैं कि साहब ये, या मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं कि अगर वो फाउंड करते हैं कि ये इन्होंने फॉल्स एंट्री कर दी। फॉल्स एंट्री 271AA में ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर कोई हमने परचेज नहीं किया उसका बिल की एंट्री कर दी, अगर हमने कोई सेल नहीं किया उस सेल की एंट्री कर दी, या फिर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, यानी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, कोई इनवॉइस के आधार पर हमने एंट्री कर दी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या किसी ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन के नाम पर हम कोई एक्सपेंडिचर या कोई इनवॉइस एंट्री कर दी, तो इस सर्कमस्टेंसेज में जितने अमाउंट की वो एंट्री है उतनी पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। इसमें एक और विशेषता है कि जो अगर वो एसएससी के अलावा भी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर पाया जाएगा कि वो उसको हेल्प किया, उसको असिस्ट किया इन रिकॉर्डिंग दैट टाइप एंट्री, सपोज कोई वो एसएससी बोलता है कि हमको तो फलाने ने एडवाइस दी थी तो उसके एडवाइस पर मैंने रिकॉर्ड कर ली, या फिर कोई जो इन्होंने सेल, फेक बिल की सेलिंग बहुत हुई जिसमें बहुत से केस हुए हम सभी जानते हैं, तो वो जो सेल कर रहा है फेक बिल का, उसका नाम अगर आता है कि उसने ये सारे फेक बिल प्रोवाइड किए एसएससी को, तो वो उसके ऊपर भी वो पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो 6 सर्कमस्टेंसेज मैंने बताया, तो इसका रेलिवेंस 270A में मुझे नहीं समझ में आया कि ये मिस रिपोर्टिंग कर करके जब वहां पेनल्टी है ही, तो क्या इस केस में डबल पेनल्टी हो जाएगी क्या? बहुत रिलेवेंट चीज है जो आपने बताई अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं इनकम टैक्स पेनल्टी में, बिकॉज गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ट्राइंग टू इंश्योर कि जो पेनल्टी प्रोविजन है वो कोर्ट्स के सामने भी सस्टेन करें। और एंड पेनल्टी प्रोविजन सर हरदम लिटिगेशन, मतलब अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पेनल्टी प्रोविजन और पेनल्टी से रिलेटेड चीज ही लिटिगेशन में रहती है मेरी समझ में। तो इसके कारण ये प्रोविजंस बार बार कोर्ट में भी आते हैं कि ये क्या सही है कि गलत है। जैसे कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक केस लो है जिसमें एक कोलकाता हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस, एक डिसीजन पास किया है अंडर 194N, जो 194N है, जिसमें अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो देयर इज अ पेनल्टी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट बोल रहा है कि सिंस इट इज नॉट इनकम, एंड जो पार्लियामेंट है उसको खाली इनकम पे टैक्स लगाने का राइट है, एंड सिंस इट इज नॉट एन इनकम, सो दिस गोज आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ द पार्लियामेंट। और कोलकाता हाई कोर्ट ने 194N पे 30 सितंबर तक उस पर रोक लगा दी है कि आप और डिपार्टमेंट उसको रिविजिट करे, और ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन है। सो पेनल्टीज और फीस, इस तरह की चीज हरदम ही लिटिगेशन में रहती है। हम आगे बढ़ते हैं सर। सो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि पिनल, और हमारे पास टाइम थोड़ी कम है बिकॉज ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो हम इसको अगले 30 मिनट में ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने सोचा था कि 1 घंटे का वेबिनार करेंगे, तो 1 घंटा तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। सो अब हम 30 मिनट में कोशिश करेंगे कि जो और टॉपिक्स है, और उसके बाद अगर दरकार पड़ा तो वी विल डू 1 मोर वेबिनार ऑन पेनल्टी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम क्वेश्चंस तो एक्सेप्ट करते ही, एंड वी रियली वेलकम योर क्वेरीज। सर, व्हाट इज द penal consequences of non complying
नोटिस फॉर सीकिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन और फाइलिंग रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नोटिसेस आती है, डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं देते हैं, बहुत बार मेल में आ रही है, अभी कोविड में नोटिसेस आ जा रही है, पता नहीं चलता है। तो पीनल कंसिक्वेंसेस क्या है अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो नोटिस के साथ? तो देखिए 272A ये इसमें ये प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई नोटिस आई, आपकी 142(1) की नोटिस आई, या आपके पास मान लीजिए कि 143(2) की नोटिस आई और उसको आप कंप्लाई नहीं करेंगे, तो हर नॉन कंप्लाइंस पर 10,000 की पेनल्टी आपको लग जाएगी। ओके ओके। और जो स्क्रूटनी असेसमेंट है, स्क्रूटनी असेसमेंट की भी एक नोटिसेस आती है, तो उसमें नॉन कंप्लायंस ऑफ नोटिस पे क्या है? वो छोटा सा अगर आप वो भी बता दें तो। उसमें भी 10,000 ही है, मैं समझ रहा हूँ। तो वो ये सब जितनी वो मैंने बताया ना कि 143(2) की अगर नोटिस आती है तो वो भी सेम सेक्शन में 272A में ही चार्ज एग्जैक्टली एग्जैक्टली 271 में 10,000 पर अपॉर्चुनिटी आपको वो लगेगा। ठीक है। सो एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स में, दैट इज 44AA ऑफ द एक्ट, which talks about maintaining of books of accounts, retaining books of account documents. सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसमें क्या penal consequences है for failure to keep, maintain or retain books of accounts as required under section 44AA? देखिए 44AA पहले समझना होगा कि 44AA कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्चुअल्स है, इंटीरियर डेकोरेटर्स है। तो वो वहाँ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी किया। साथ ही बिजनेस और अदर प्रोफेशन के लिए उन्होंने कहा कि अगर 1,20,000 रुपया इनकम या 10 लाख रुपया टर्नओवर पिछले 3 साल में कोई साल में भी अगर इनको आ रहा है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है और उस एसएससी को ये लग रहा है कि हमारा जो टर्नओवर 10 लाख से ऊपर और इनकम मेरी 1,20,000 से ऊपर आएगी पहले साल में ही, तो उनको भी ये काम करना पड़ेगा। और ये इसमें जो पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो है 270, वो आपको पेनल्टी का प्रोविजन है 271A में। 271A में ये पेनल्टी का प्रोविजन है और इसमें 25,000 रुपये तक का पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगा सकते हैं। ओके सर, ओके। आपने 92D ऑलरेडी बता चुका है, 92D के बारे में। डू यू वांट टू पुट मोर डिटेल ऑन 92D? देखिए 92D और 10D यानी जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं या डोमेस्टिक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस कास्ट किए गए हैं कि उनको उस ट्रांजैक्शन के संबंध में अपने डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशंस एज पर सेक्शन 92D एंड रूल 10D के हिसाब से उनको रखना पड़ेगा। साथ में उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये उनको अगर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर उनसे डिटेल मांगते हैं तो वो भी उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं देते हैं या वो नहीं रख पाए इस तरह का ट्रांजैक्शन, तो 2% ऑफ डेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ओके सर। सर अब थोड़ा सा हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक में मूव करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या आई एम ट्राइंग टू जंप, तो आप इम्पोर्टेंट चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वी मूव टू सर्च केसेस। सर्च केसेस में पेनल्टी कंसिक्वेंसेस फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो होता है सर्च केसेस में, उसके बारे में बताइए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट। और आई थिंक पेनल सेक्शन उसका 271AA भी है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए पेनल्टी आपका यहाँ सर्च हुआ, ये सर्च 16/12/2016 के बाद में जो अभी, तो वही अभी करंट के प्रोविजन भी है, क्योंकि 16/12/16 अभी तो 2021 5 साल बीत गए उस बात को भी। अभी पेनल्टी 2 स्लेब में है। 30% पेनल्टी है 271AA B में, क्योंकि सेक्शन हो सकता है कि उतनी मेमोरी में नहीं रहे, लेकिन मेरे को जहां याद आ रहा है कि 271AA B जो है इसको डिस्कस करता है पेनल्टी इन केस ऑफ सर्च। लेकिन ये किस लिए, किस सर्कमस्टांसेज में डिस्कस करता है? सिर्फ स्पेसिफाइड ईयर के लिए डिस्कस करता है। अब स्पेसिफाइड ईयर किसको कहेंगे? स्पेसिफाइड ईयर कहेंगे कि जिस साल सर्च हुआ, सपोज आज 10 जुलाई को किसी के यहाँ सर्च हो गया, तो ये जो साल चल रहा है यानी 1 अप्रैल 2021 से जो साल चालू हुआ और 31 दिन 2022 का,
ये जो असेसमेंट हुआ इसको स्पेसिफाइड ईयर कहेंगे, क्योंकि इसकी रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई। और एक 31/3/21 को जो साल खत्म हो गया, जिसके कि 139 की अभी एक्सपायरी नहीं किया है, उनका जो ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं किया है, और एसएससी ने रिटर्न भी नहीं फाइल किया। मान लीजिए ड्यू डेट एक्सपायर नहीं किया और एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दिया, तो ये लागू नहीं होगा। तो ये स्पेसिफाइड ईयर के लिए इन्होंने कहा कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च 132(4) का एक स्टेटमेंट होता है एसएससी का, उस 132(4) के स्टेटमेंट में एसएससी को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस इनकम को। अगर मान लीजिए उनके यहाँ सर्च में कोई केस, बुलियन ज्वेलरी, कोई अनडिस्क्लोज एसेट्स या कोई इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स के आधार पर कोई इनकम निकलती है, तो उस इनकम को 132(4) यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च ही उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो डिस्क्लोज कर देते हैं वहां पर, और उसके बाद में, और वहां ये भी बताते हैं कि ये इनकम का सोर्स क्या था उनका, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर इनकम का सोर्स भी नहीं बताते हैं तो वो एक कंडीशन खत्म हो गया, तो उनको अपने इनकम का सोर्स भी बताना होगा। साथ में उनको टैक्स जमा करना होगा, अपना रिटर्न भरने के जो टाइम है उस रिटर्न में वो इनकम को इंक्लूड कर दें, और उसका टैक्स रिटर्न भरने के पहले जमा कर दें, तो उनको 30% पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन वो पूरी नहीं करते हैं, यानी मान लीजिए उन्होंने डिस्क्लोज तो कर दिया लेकिन ये नहीं बताया कि ये इनकम का सोर्स क्या था, या उन्होंने ये भी बता दिया कि इनकम का सोर्स क्या है लेकिन उन्होंने रिटर्न में इंक्लूड नहीं किया इसको, या उसका टैक्स जमा नहीं किया रिटर्न के पहले, तो उस केस में उनको 60% पेनल्टी लगेगी। ओके ओके सर, ओके सर। हम नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ये आप आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुके हो, आपको और डिटेल में करना है तो आप बताना, व्हाट इज द पेनल कंसिक्वेंसेस इफ इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट एक्सप्लेन्ड। अभी भी आपने इसमें कुछ रिलेटेड डिस्कस किया है, तो इसमें कुछ ऐसा चीज है जो आपको और ऐड करना है कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये जो 68 से लेकर 69D के जो सेक्शंस है, इन पर अगर एडिशन करते हैं एसेसिंगों पर, जैसे 68 में केस क्रेडिट का मामला है, अगर एसएससी ने अगर कोई केस एंट्री ले ली अपने क्रेडिट साइड में और उसका सोर्स नहीं बताया, तो 68 में एडिशन हो जाएगा। 69 जैसा हमने पहले डिस्कशन किया कि अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया और उसको रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक्स में, तो ये 69 में एडिशन हो जाएगा। 69A में जो है उनका अगर कोई एक्सपेंडिचर अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसी तरह पार्टली उन्होंने डिस्क्लोज किया अपना इन्वेस्टमेंट को 69C में, और 69D हुंडी से संबंधित लोन्स के संबंध में है। तो ये सारे केस में अब पेनल्टी टैक्स लगेगा, टैक्स का स्लेब एक तो चेंज हो जाएगा उनका। ये जो टैक्स का स्लेब, नॉर्मल स्लेब जो 30% है वो नहीं लगेगा, वो लगेगा उनको 60%। 115 BBE में उनको ये लगेगा, टैक्स लग जाएगा 60%, और साथ में 10% की पेनल्टी लगेगी उनको 271AA में, तो और साथ में उनको सरचार्ज भी लगेगा। तो ये काफी महंगा सौदा हो जाता है। तो अभी एसएससी को ये एडवाइस है कि वो कोई भी इस तरह का काम न करे, क्योंकि वो जितना इन्वेस्टमेंट या जितना वो बचाने की कोशिश किया उससे ज्यादा ही उनको नुकसान हो गया। इसलिए अपना सिंपल बिजनेस करे और उससे जो भी इनकम आता है उस पर टैक्स दे दे, तो कोई तरह की उनको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ओके सर, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है इनकम टैक्स में, तो अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं होती है तो किस तरह की पेनल्टी लग सकती है? देखिए ये आप 44AB की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 44AB में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर अगर बिजनेस हाउस में है, और अगर प्रोफेशनल को 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। या फिर प्रिजेम्पटिव इनकम जो 44AD में या 44A में अगर हम प्रिजेम्पटिव इनकम से कम इनकम दिखाते हैं तो भी हमको ऑडिट करवानी पड़ती है। तो इसमें 271B में आपको पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी अगर नॉन कंप्लायंस हो गया तो, और ये पेनल्टी लगेगी आपको जो उनको 1.5 लाख रुपया यानी 1,50,000 रुपीज और 0.5% ऑफ द टर्नओवर जो भी कम हो। ओके सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो हमें भी बार बार आती रहती है। दिस क्वेरी वी गेट वेरी रेगुलरली, दैट आई एम सेलिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं अपना, एंड कैन आई एक्सेप्ट कंसिडरेशन इन कैश फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इफ नॉट व्हाट आर द पेनल्टीज। लोग खरीद लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर बोलते हैं अब तो पेनल्टी लगेगी इसमें। सो सर वो एक्सप्लेन कर दीजिए कि वेदर एक्सेप्टिंग कंसिडरेशन इन कैश फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें क्या है?
देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 269 269 ये बोलता है कि ये पुराना सेक्शन है, लेकिन 3-4 साल पहले इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया कि इसमें एक स्पेसिफाइड सम भी डाल दिया। तो इसमें इन्होंने ये कहा, क्योंकि लोग करते क्या थे कि जब इसमें स्पेसिफाइड सम नहीं डाला गया था तो लोग बोल देते थे कि भाई ये मेरा एक एग्रीमेंट, जब किसी के यहाँ सर्च होता था या कोई सोर्स कोई किसी इन्वेस्टमेंट का नहीं बता सकते थे तो ये बोलते थे कि भाई ये जो पेमेंट केस में जो आया है मेरा, ये एक एग्रीमेंट के अंतर्गत ये मैंने प्रॉपर्टी सेल की उसका आया, केस में पैसा आया, तो उन्होंने स्पेसिफाइड सम भी डाला। तो अभी 269 ये कहता है कि 20,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट हम ना तो लोन के रूप में ले सकते हैं, ना एडवांस के रूप में ले सकते हैं, ना स्पेसिफाइड सम के भी एडवांस के रूप में हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब अगर इसका कंट्रावेंशन होता है तो 271D में पेनल्टी है कि जितना भी आपका ये अमाउंट है आपने जो लिया कंट्रावेंशन में, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया ले लिया इन प्लेस ऑफ 20,000, तो ये 80,000 रुपया पर आपको ये पेनल्टी 80,000 रुपया पेनल्टी लग जाएगी। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड सम में आ जा रही है, तो अब आप कोई भी एडवांस 20,000 से ऊपर नहीं ले सकते हैं किसी एसएससी से। और जो रिपेमेंट में भी 269T है कि रिपेमेंट भी आप 20,000 से ऊपर इन तीनों का नहीं कर सकेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि आप कोई लोन लिए हैं या डिपॉजिट लिए हैं या कोई स्पेसिफाइड सम अमाउंट लिए हैं, तो वो 20,000 से ऊपर अगर आपको रिपेमेंट करना है तो उसको भी आपको चेक से या अकाउंट पे चेक या बैंकिंग चैनल के द्वारा ही करना पड़ेगा। अदरवाइज 271E में पेनल्टी आपको लग जाएगी और जितना अमाउंट आप रिपेमेंट कर रहे हैं उतना ही आपको लग जाएगा। ओके सर, अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ये है SFTR, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आजकल आपके 26 एज पे सब कुछ दिखने लगा है, तो ये व्हाई फर्निशिंग ऑफ SFTR इज नेसेसरी, ये सर आप थोड़ा बताइए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए ये SFTR जैसे कि अभी बहुत सी संस्थाओं के ऊपर ये ऑब्लिगेशन कास्ट किया गया है कि आपको फिनेंशियल स्पेसिफाइड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इसको बोलेंगे, ऐसे हो गया स्पेसिफाइड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो SFTR जो है ये जैसे बैंकों के ऊपर इन्होंने कर दिया, जैसे कि इन्होंने जो है ये जो रजिस्ट्रार है जो जमीन की रजिस्ट्री करते हैं उनके ऊपर कर दिया, ये म्यूचुअल फंड वालों के ऊपर कर दिया। तो ये एक स्पेसिफाइड सम जैसे 10 लाख से ऊपर की अगर कोई डिपॉजिट करेगा तो उसकी रिपोर्टिंग आपको बैंक को करनी पड़ेगी, और वो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में 26 AS में भी एसएससी का रिफ्लेक्ट करने लग जाए। और इसी तरह से अगर कैश ट्रांजेक्शन किया है एसएससी ने अपने बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा, तो वो कैश ट्रांजेक्शन का भी उनको जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसी तरह से कोई अगर जमीन 10 लाख से ऊपर के खरीद बिक्री हुई है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो उनको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये 285 BA में इनको जो है ये सारा इसमें प्रोविजंस दिया हुआ है, और ये सारी संस्थाओं को ये SFTR यानी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है, जिसके कारण असेसिंग ऑफिसर को एक टूल मिल जाता है, वो फिर मिलान करता है कि ये जो ट्रांजेक्शन एसएससी ने किया है वो सारा अपने रिटर्न में रिफ्लेक्ट किया कि नहीं। अगर रिफ्लेक्ट नहीं किया तो वहां पर फिर वो उसको स्क्रूटनी में लेकर के उस पर टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये फाइल टाइमली नहीं करते तो इसके लिए भी पेनल्टी प्रोविजन है। ओके सर, अब हम क्या करेंगे सर कि 2 से 3 क्वेश्चन है हमारे लाइव क्वेश्चंस, उसको हम ले लेते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी ओवर द टाइम, और दरकार पड़ी तो हम एक और खाली क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम पेनल्टी पे। सर मनीष अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि TDS इज डिडक्टेड बाय कंपनी एंड बाय मिस्टेक इट इज नॉट अपडेटेड बाय कंपनी इन TDS रिटर्न, मतलब TDS डिडक्ट किया बट TDS रिटर्न में उन्होंने दिखाया नहीं है। और अभी क्या है कि SSC जो है वो अब वो नॉन कंप्लायंस दिख रहा है पोर्टल पे, तो उस पे SSC के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, इसमें SSC डिडक्टर है या डिडक्टी है, मतलब ये क्वेश्चन है डिडक्टर की तरफ से है कि डिडक्टी की तरफ से है? डिडक्टर की तरफ से। जैसे डिडक्टर ने TDS काट लिया और काट करके उनको अपना रिटर्न भरना था, TDS रिटर्न सेक्शन 200 के हिसाब से उनको अपना रिटर्न भर देना था। अब वहां पर उन्होंने गलती, जो मैं समझ पाया हूं कि उन्होंने कुछ गलती हो गई, एरर हो गई वहां पर उनसे, तो उसको रेक्टिफिकेशन कर देना। वहां रेक्टिफिकेशन करने का तो प्रोविजन है TDS रिटर्न में, यू कैन रेक्टिफाई। बट मैटर पुराना हो गया है, अब तो रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। नहीं, जैसे ऑनलाइन अगर रेक्टिफिकेशन में आपका तो आपका जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर, अभी तो TDS तो जुडिशनल ऑफिसर है ही आपके, तो उसको आप अप्रोच कीजिए। ओके ओके,
अच्छा, सेकंड क्वेरी जो है वो ये है कि 44A के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं. इफ समवन enters into a contract with a company where a contract is where a contract is entered to run the truck on a fixed monthly income और सब expenses जो है वो owner bear कर रहे हैं, will the income from such truck will still be covered under 44AE? देखिए ऐसा है कि 44A अनऑर्गेनाइज सेक्टर है चूंकि ट्रांसपोर्टेशन का, तो जिनको 10 ट्रक या 10 ट्रक से कम है उनको ये एक रियायत दी गई कि आप फिक्स रेट में ये टैक्स दे दीजिए. अब इस केस में जो ये बता रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ किन्हीं के साथ में और उनको ये ट्रक भाड़े पर दे दी, और भाड़े पर देने के बाद में इसका जो खर्च बियर कर रहे हैं ये शायद ट्रक ओनर बियर कर रहे हैं, जैसा आपने बताया. ट्रक ओनर भी बियर कर रहे हैं या फिर जिन्होंने ट्रक भाड़े पर लिया वो बियर कर रहे हैं? ट्रक ओनर बियर कर रहे हैं. ठीक है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, ये तो एक मोड ऑफ बिजनेस हो गया. आप अगर आप वो कंडीशन में आप आते हैं कि अगर आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है तो आप अपनी रिटर्न 44A के आधार पर दे सकते हैं. Okay, I think with this, I think we should cover and we should close today. Sir, any specific ऐसा कोई मैटर या पॉइंट है जो आपको लगता है छूट गया है जो आपको बताना है तो आप बता सकते हैं. Otherwise, we will close this webinar for today. कोई ऐसा मैटर है सर? देखिए ऐसा है कि एक इशू जो देखिए अभी 270A इज वेरी हॉट टॉपिक बिकॉज इट इज न्यू टॉपिक. अभी इस पर बहुत से केस लॉ आए नहीं है. जैसे 271C तो बहुत टेस्टेड सेक्शन हो गया था, तो उस पर बहुत से सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट थे, इसके ऊपर बहुत जजमेंट नहीं है. तो एक इशू हम लोग का छूटा है कि सब सेक्शन 6 में कुछ नेगेटिव लिस्ट भी एक दी गई है. एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है जिसमें कि ये बताया गया है कि साहब आपको 270A की पेनल्टी नहीं लगेगी कुछ सर्कमस्टांसेस में. तो वो मैं 4-5 पॉइंट है जिसको मैं आपको बता देता हूं सो डेट के वो भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पांच सर्कमस्टांसेस में आपको नेगेटिव लिस्ट जो है कि यहाँ पर देखिए. अब ये है कि और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, क्योंकि 270A की अगर नोटिस आ गई तो आप कैसे डील करेंगे. तो आप डील करेंगे कि अगर आप ये प्रूव करते हैं कि ये मेरा सब सेक्शन 6 में कवर कर जा रहा है तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. अब जैसे कि पहला ही इसमें है कि अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं, माने आपको तो 100 कोज दिया जाएगा, एसएससी को एक 100 कोज दिया जाएगा. वो 100 कोज में अगर आप ये प्रूव कर दें कि साहब ये एक्सप्लेनेशन है हमारी और वो एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड होनी चाहिए एसएससी ऑफिसर के ओपिनियन के हिसाब से, और उस इश्यू के संबंधित आप सारा डिस्क्लोजर कर दिए, तो वो उस केस में आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपने एक कंपनी है और उन्होंने अपने किसी डायरेक्टर को या कोई शेयर होल्डर को जिसका 10% से ऊपर की शेयर होल्डिंग है और उसको उन्होंने लोन दे दिया. कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये इंटरेस्टेड पार्टी का मैं बताता हूँ, एक उदाहरण इंटरेस्टेड पार्टी का देता हूँ कि उससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लिया. तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लिया तो असेसिंग ऑफिसर ये बोलेंगे कि साहब आपने कम रेट में किया ये और इसकी रेट ये होनी चाहिए, और उन्होंने इस बेसिस पर एडिशन कर दिया. सपोज उनसे आप ट्रक ही भाड़े पर एक रेंट पर एक घर ही लिया और वो घर भाड़ा आपने मान लीजिए कि उस ऑफिस का भाड़ा या 6 लाख रुपया दिया आपने, और लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जो लोकेशन है वहां 6 लाख नहीं, इसका 4 लाख रुपया ही भाड़ा होगा. तो ये जो है उन्होंने एडिशन तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन जब पेनल्टी स्टेज पर आप बोल सकते हैं एक कंपैरेटिव चार्ट दे करके कि साहब ये जो भाड़ा है ये हमारा एकदम रीजनेबल भाड़ा है, और ये देखिए अगल बगल के जो रेंट है ये भी 6 लाख के आसपास है, पर स्क्वायर फीट का रेट मैं उतना ही ले रहा हूँ जो अगल बगल के भाड़ों का है. अगर ये बोनाफाइड रहे और ये आपको डिस्क्लोज आपका किया ही हुआ है कि भाड़े से इनकम है, तो हो सकता है कि 270A की पेनल्टी आप पर नहीं लगेगी. दूसरा में एक उदाहरण है, फिर एक केस इन्होंने एस्टिमेट के 2 केस दिया है. एस्टिमेट का एक केस इन्होंने दिया है कि मान लीजिए कि एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट है और करेक्ट भी है, लेकिन मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन के कारण एसेसिंग ऑफिसर ने एडिशन कर दिया. एसएससी ने अपना वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया था फीफो पर, और एसेसिंग ऑफिसर ने सपोज वो कहता है कि नहीं साहब वेटेड एवरेज
ही इसमें लागू होगा और वेटेड एवरेज के आधार पर उन्होंने इस पर असेसमेंट कर दिया। तो इस केस में भी उसको 270A की पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन है कि जहां पर एस्टिमेटेड, क्योंकि ये भी एस्टिमेटेड इनकम है और वो उन्होंने फीफो के आधार पर किया था और इन्होंने किया है एवरेज वेटेड के आधार पर, तो इस पर भी पेनल्टी 270A की नहीं लगेगी। अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग के कारण कोई एडिशन होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है, करेक्ट है, कंप्लीट है, तो उस केस में भी आपको 270A की पेनल्टी नहीं लगेगी। तीसरा केस इन्होंने बताया है सब सेक्शन 6 में कि साहब आपने अपने रिटर्न दी, उस रिटर्न में कुछ एस्टिमेटेड आपने डिसअलाउंस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में सपोज 6 लाख रुपया हमारा कार एक्सपेंसेज खर्च हुआ था, उस कार एक्सपेंसेज का 10% हमने अपने कंप्यूटेशन में डिसअलाउ कर दिया और डिसअलाउ करके अपनी रिटर्न फाइल कर दी। अब असेसिंग ऑफिसर कहते हैं कि नहीं साहब, आपका जो कार एक्सपेंसेज है, सीइंग योर स्टेटस, और चूंकि आपकी पर्सनल कार नहीं है, सिर्फ कंपनी की कार है, तो हमने 25% डिसअलाउ करूंगा इसमें, और वो 25% डिसअलाउ कर देते हैं। तो इस केस में भी चूंकि ये एस्टिमेटेड डिसअलाउंस है और ये डिसअलाउंस ऑलरेडी एसएससी ने अपने रिटर्न में दिखाया है और इसके संबंध में डिस्क्लोजर भी सारा कर दिया है, तो इस पर भी इनको पेनल्टी नहीं लगेगी। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के संबंध में भी अगर 92D के प्रोविजंस के अनुसार एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखे हैं और उसका डिस्क्लोजर किया है, लेकिन अब टैक्स प्राइसिंग ऑफिसर यानी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर टीपीओ जो है वो उनका कोई एडजस्टमेंट के आधार पर यानी एडजस्टमेंट कर देता है और एडजस्टमेंट करके कुछ एडिशन कर देता है, तो ये भी पेनल्टी का मामला नहीं आता है। और पांचवा इन्होंने बताया है कि पेनल्टी के केस में जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है 271AA के केस में कि स्पेसिफाइड ईयर में भी आपको पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A नहीं लगेगी। तो ये छूट गया था, इसलिए मैंने ये कवर कर दिया चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो जो जिस तरह से हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, हमको लगता है कि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और लोगों का फोन भी आता है, और चूंकि ये हम लोग का यूट्यूब पर भी लोड रहता है, यूट्यूब पर भी देखते हैं काफी लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो टैक्स मंत्रालय से अनुरोध है कि इस तरह के वेबिनार करते रहे वो। थैंक यू सर फॉर द एप्रिसिएशन, और बहुत अच्छा रहा आज का वेबिनार। अब इनकम टैक्स क्या है ना कि इतना पुराना एक्ट है, लोग 5000 साल से जब से दुनिया है तब से टैक्स दे रहे हैं, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। तो क्या है कि एक वेबिनार में पूरे की पूरी पेनल्टी के प्रोविजन को बहुत डिटेल्ड में कवर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस जंप किए जो मेरे को लगा कि रेलेवेंट नहीं है या उसको हम इजीली उसका आंसर गूगल पे मिल सकता है। बट किसी के पास कोई भी क्वेरी, इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेरी, प्लीज फील free to contact us either on LinkedIn, YouTube, Facebook, or you can email us or info@taxmantra.com, or you can call us on our toll free number. We will be more than happy to help you, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वेबिनार का वो दो है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बिजनेस ओनर है, ग्रोइंग बिजनेसेस है, उनके बिजनेस ओनर को, सीएफओस को, फाइनेंस हेड को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इनकम टैक्स कैसे वर्क करता है। तो उनको समझ में आया कि भाई अ कॉस्ट टू नॉन कॉम्प्लायंस, एक बहुत अच्छी चीज मैंने सुनी थी कहीं पे, वहां पे लिखा हुआ था कि द कॉस्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस इज 5 times ऑफ द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लायंस। नॉन कॉम्प्लायंस करने का जो कॉस्ट है वो कॉम्प्लायंस करने के कॉस्ट से एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा है। तो वो चीजें समझ में आए लोगों को। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी नॉलेज को स्प्रेड करें और इसके कारण जो हमारे प्रोफेशनल कलीग्स है उनको भी ये नॉलेज मिले। तो ये ऑब्जेक्टिव है। एंड आई अगेन थैंक पटनिया सर फॉर दिस, एंड दीपांजलि थैंक्स, एंड कंप्लीट टैक्स मंत्रा टीम एंड आवर नेटवर्क फर्म जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और हम इसको करते रहेंगे। हमने ये डिसाइड किया कि महीने में 1 या 2 तो कम से कम इस तरह का हम वेबिनार पटनिया सर के साथ करेंगे। लेट्स सी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या चूज करते हैं, बट तब तक थैंक यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज take your vaccine if you have got the turn, और safe रहिए, सुखी रहिए। I think thanks and have a nice and relaxed weekend. Everyone take care. दीपांजलि, आपको कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना है तो आप बोल सकते हो। No, I think you have perfectly summed it up.
I'll just tell the audience कि आप लोग हमारे YouTube चैनल या फिर LinkedIn पे जाके ये वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। YouTube पे हम लोग पूरे दिन में इसको अपलोड करेंगे ना, couple of days में भी, but LinkedIn में ये अवेलेबल है. So if you have any queries that you missed it, you can go through it. Yeah, as Alok said, please get in touch with us. हम लोग बहुत interesting चीजें plan कर रहे हैं. So I would request everybody to keep tab on our page. I will come up with lot of AMAs, lot of webinars, a lot of छोटा topics का videos. Hope to see you there. और हम जैसे दीपांजलि कर, अभी हम लोगों ने थर्सडे को एक वेबिनार किया था हमारे सिंगापुर पार्टनर के साथ, डिटेल्ड वेबिनार सिंगापुर के बारे में. सो बहुत डाइवर्स और टॉपिक्स पे हम वेबिनार करते रहते हैं. तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज गो एंड लाइक आवर लिंक्डइन पेज, जिससे कि आप अपडेटेड रहो और आपको पता रहे कि क्या क्या होने वाला है. आई थिंक विद दिस आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम. Thanks everyone for joining in. Till the time we meet again for another webinar. Till that time, stay safe, stay healthy, stay happy. Thank you.